پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے زمانے کے اندر 3 آدمی جا رہے تھے، رات کا ٹائم، بارش ہونے لگی تھی۔ آپ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں پیارے مسلمانوں کہ ان 3 آدمیوں نے جب مصیبت کے اندر پھنس گئے تو کس کو پکارا؟ ہم سب کو چاہیے کہ مصیبت کے وقت میں خالص اللہ کو پکاریں۔ ان 3 لوگوں نے صرف اللہ رب العالمین کو پکارا، اور ان تینوں آدمیوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا اور اپنے نیکیوں کو اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ بنایا، اور رب العالمین نے ان تینوں آدمیوں کو نجات دے دیا، مصیبت سے نکال دیا۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں قرب تلاش کرنا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرنا۔ آئیے پہلے یہ واقعہ دیکھتے ہیں۔ تینوں آدمی جا رہے تھے، بارش ہونے لگی تھی، رات کا ٹائم تھا۔ اب جس پہاڑ کے اندر داخل ہوئے بارش سے بچنے کے لیے، پہاڑ کا منہ بند ہو جاتا ہے، ایک چٹان اللہ کے حکم سے گرتی ہے، اور جس راستے سے غار کے اندر داخل ہوئے تھے وہ منہ بند ہو جاتا ہے، ایک چٹان آ کر اس پر گر جاتی ہے۔ اب تینوں آدمی غار کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر پھنس گئے کہ اب باہر کیسے نکلا جائے۔ پیارے مسلمانوں، یہاں پر غور کرو، ان 3 لوگوں کے سامنے یہ بھی آپشن تھا، جس طریقے سے آج اکثریت مسلمانوں کا یہ عمل ہے، جو لوگ کر رہے ہیں ایسا بالکل ناجائز اور غلط طریقہ ہے، کہ وہ ان کے سامنے یہ آپشن تھا کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین، ہم آدم علیہ السلام کو تیرے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو تیرے بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، اے رب العالمین تو ہمیں نجات عطا فرما دے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ الہ العالمین رب العالمین، ہم شیس علیہ السلام کو، ہم نوح علیہ السلام کو، دیگر انبیاء علیہ السلام کی فہرست ان کے سامنے تھی، وہ چاہتے تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے ہیں اللہ ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں مصیبت سے نجات دے دے۔ لیکن ان اسلام والوں نے اور ان 3 آدمیوں نے کس چیز کا وسیلہ اللہ کے بارگاہ میں بنایا؟ انہوں نے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا۔ کس چیز کا وسیلہ بنایا؟ نیک اعمال کا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وسیلہ بنایا۔ مصیبت میں جب پھنس گئے، تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، تینوں لوگوں نے کہا اب کیا کرو گے؟ اب اس مصیبت سے نکلا کیسے جائے، اس مصیبت سے نجات کیسے حاصل کیا جائے؟ تینوں لوگوں نے آپس میں کہا اپنی اپنی زندگی کے اندر جو بھی نیک اعمال ہم سب نے کیے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اسی کو پیش کرو، اور نیک اعمال کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین سے کیا کرو؟ دعا کرو۔ پیارے مسلمانوں، غور کرو، اپنے بارے میں سوچو، ہم سب اپنے بارے میں محاسبہ کریں، کیا کوئی ایسی نیکی ہمارے اندر ہے، یا ہم نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جو کبھی مصیبت کے پھنس جائیں تو تنہائی میں اللہ کے سامنے اس نیکی کو رکھ سکیں کہ اے رب العالمین ہم نے فلاں نیکی خالص تیری رضا کے لیے کی تھی، اے اللہ فلاں عبادت ہم نے تیرے لیے خاص کر کے کیا تھا۔ کبھی مصیبت میں پھنس جائے، کوئی ایسی نیکی کی تیاری کی ہے جو اللہ کے سامنے رکھ کر نجات حاصل کر سکے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کثرت سے نیک اعمال کرے اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کرو۔ بتانے کا مقصد یہ، پہلے آدمی نے اللہ رب العالمین کے سامنے جو نیک اعمال کا وسیلہ بنایا، نیک اعمال جو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھا، اللہ رب العالمین کو تو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے رب العالمین۔ پہلے آدمی نے جو کہا اے الہ العالمین، اے رب العالمین، میں ایک بکری کا چرواہا اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور روزانہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ جب شام میں گھر آتا تھا تو اے رب العالمین ہمارا یہ معاملہ
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो उस शख्स ने कहा कि हमारा ये मामला था कि मैं सबसे पहले बकरियों के दूध को दूहकर अपने माँ बाप की खिदमत में पेश किया करता था, ये मेरा उसूल था, फिर अपने बीवी बच्चों को पिलाता था। और दुआ करते हुए कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दरख्त से पत्ते लेने के लिए बहुत दूर चला गया और हमें शाम में लेट हो गया, आने में काफी ताखीर हो गया आने में, और इतनी ताखीर से मैं घर पहुंचा कि हमारे माँ बाप सो चुके थे, रात हो चुकी थी। मैं अपने बकरियों के थन से दूध को निकालता हूँ और अपने माँ बाप की खिदमत में लेकर खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं माँ बाप को जगाता हूँ तो नींद में खलल हो जाएगी और माँ बाप हमारे परेशान हो जाएंगे, नींद उनकी खत्म हो जाएगी, नींद उनकी उचट जाएगी। ऐ रब्बुल आलमीन, मामला ये था कि भूख का मामला मेरे बच्चों के साथ ये था कि मेरे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे थे, परेशान थे, लेकिन मैं दूध का प्याला लेकर अपनी माँ बाप की खिदमत में पेश रहा, खड़ा रहा, मैंने उनको जगाया नहीं, यहाँ तक कि जब सुबह हो गई और मेरे माँ बाप जब बेदार हो जाते हैं तो सबसे पहले मैं अपने माँ बाप की खिदमत में दूध का प्याला पेश करता हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को पिलाता हूँ। ऐ रब्बुल आलमीन, अगर ये मैंने नेकी खालिस तेरी रजा के लिए किया था, ऐ अल्लाह तुझको खुश करने के लिए अगर नेक अमाल किया था तो इलाहुल आलमीन आज इस मुसीबत से निजात अता फरमा दे। देखिए नेक अमाल का वसीला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चट्टान को इतना हटा दिया और इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रास्ता बना दिया कि अभी कोई निकल नहीं सकता था, यानी चट्टान थोड़ा सा गार से हट गया, यानी थोड़ा सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हटा दिया। देखिए नेक अमाल का वसीला पेश किया अल्लाह की बारगाह में। अब दूसरे शख्स की बारी आई। दूसरे शख्स ने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में अपने नेक अमाल को पेश किया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ये सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। दूसरे आदमी ने अल्लाह के बारगाह में क्या नेक अमाल पेश किया? कहा ऐ रब्बुल आलमीन, मेरी चचा की लड़की थी, अल्लाह को तो हर चीज मालूम है, मेरी चचा की लड़की थी और मैं उस पर बड़ा फरेफ्ता था, मुझे बहुत वो पसंद थी, मैं उससे इंतहाई मोहब्बत करता था, लेकिन वो मेरे हाथ ना आती थी और मेरे जाल में वो फंसती ना थी। मामला ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद कहस साली पड़ गई और ये था पैसे वाला आदमी, कहस साली पड़ गई, भुखमरी का मामला आ गया। वो खातून जो मेरी चचा की लड़की थी मेरे पास आई, कर्ज लेने के लिए आई और मैंने उसे 120 दीनार दे दिए और इस वजह से 120 दीनार दे दिया कि ले जाओ और हम तुमसे फायदा हासिल करेंगे, यानी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, अपनी ख्वाहिशात की तकमील तुमसे इसके बदले में करेंगे। वो मजबूर औरत चचा की जो लड़की थी मजबूर हो गई, इसलिए कहस साली का मामला था, वो पैसा लेकर चली गई और वादे के मुताबिक दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। देखिए अल्लाह की नेक बंदियों का ईमान और अल्लाह की खास तौर पे इस नेक बंदी का ईमान जरा देखिए। इस तरीके से अल्लाह की नेक बंदी का ईमान होता है और अल्लाह के नेक बंदे का ईमान होता है। पैसा लेकर चली गई थी, वादा कर गई थी कि हम तुमसे मुलाकात करेंगे। दोनों तन्हाई में इकट्ठा होते हैं। जब तन्हाई में इकट्ठा होते हैं, दुनिया की कोई निगाह नहीं देख रही है, सिर्फ रब्बुल आलमीन देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का देखने वाला है, हर चीज का जानने वाला है, हर चीज का इल्म रखने वाला है। तन्हाई में जब दोनों इकट्ठा होते हैं, वो नेक औरत क्या कहती है? इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह से डर जा, अल्लाह से खौफ खा जा और नाजायज तरीके से इस मोहर को ना तोड़। ऐ रब्बुल आलमीन,
उस दिन जिस दिन मैं गुनाह से बाज आ गया, ऐ अल्लाह उस नेक औरत ने तेरा हवाला दिया। उस तन्हाई की हालत में ऐ अल्लाह मैं उस गुनाह से बाज आ गया, मैंने गुनाह नहीं किया और मैंने उस औरत को छोड़ दिया। इलाहुल आलमीन, जो हमने उसे पैसा दिया था हमने उससे भी उसे छोड़ दिया, माफ कर दिया, उसे दे दिया। ऐ रब्बुल आलमीन, मैं गुनाह से भी बाज आ गया। उस औरत ने तेरा खौफ मुझे दिलाया, तेरा डर मुझे दिलाया, मैं उस गुनाह से बाज आ गया। ऐ रब्बुल आलमीन, अगर वो नेकी मैंने तेरी खालिस रजा के लिए किया था तो रब्बुल आलमीन आज हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चट्टान को और हटा दिया, गार से चट्टान और हट गया, अभी भी नहीं निकल सकते थे। अब तीसरे शख्स की बारी आई। इस वाक़े से हमारे नौजवान मुसलमानों को, नौजवान बहनों को इबरत हासिल करना है। ये खालिस अल्लाह से डरना है, और जो अल्लाह से डर गया और अल्लाह से डर कर गुनाहों से दूर हो गया, हकीकत में वही अल्लाह का नेक और खालिस बंदा है, वही अल्लाह की नेक खालिस मोमिना बंदी है, जो तन्हाई की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर के गुनाहों से बाज आ गया। तीसरा आदमी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी नेकी को पेश करता है और कहता है, इलाहुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, एक दिन ऐसा था कि मैंने कुछ मजदूरों से काम लिया था, कुछ मजदूरों से काम करवाया था, और मैंने सारे मजदूरों को उनकी मेहनत को दे दिया था, उनकी उजरत को दे दिया था। जो काम मेरे घर पे किया मैंने पैसा दे दिया, लेकिन एक ऐसा मजदूर था जो अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया था, और उसकी मजदूरी से मैंने अपने कारोबार में बड़ा तरक्की कर लिया। हमारे पास ऊंटों के रेवड़ हो गए, गाय की रेवड़ हो गई, और हमारे पास बकरियां हो गई, और हमारे पास गुलाम हो गए, यानी काफी माल और दौलत हमारे पास इकट्ठा हो गया। वो जो मजदूरी छोड़ गया था उससे हमने काफी अपने कारोबार को तरक्की में ले आया, और काफी हमने अपने कारोबार के अंदर हमने इजाफा कर लिया। जब वो कुछ महीनों और कुछ अरसे के बाद जब वो लौट कर वो आदमी आता है और कहता है कि हमारी मजदूरी हमें दे दो, मैंने कहा ये ऊंट, ये गाय, ये बकरियां, ये गुलाम, ये तमाम चीजें सब तुम्हारी हैं, ले जाओ। उस मजदूर ने कहा, अल्लाह के बंदे मुझसे मजाक ना करो, मैं आपसे मजदूरी मांगने आया हूं, मजदूरी में नहीं लेकर जा पाया था, मेरी मजदूरी दे दो। ये हमारे कैसे हो सकती है, मजाक मत करो। कहा, अल्लाह के बंदे मैं तुमसे मजाक नहीं करता, ये सारी चीजें तुम्हारी हैं। जब उसे यकीन हो गया तो सारी चीजों को लेकर चला गया। ऐ रब्बुल आलमीन, अगर मैंने ये नेकी खालिस तेरी रजा के लिए किया था, तुझे खुश करने के लिए किया था, तो इलाहुल आलमीन आज हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा दे। अल्लाह के नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन तीन आदमियों को, उन नेक बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसीबत से निजात अता फरमा दिया। उस गार से चट्टान अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल तरीके से हट गया, और तीनों आदमी सही सालिम बाहर आ जाते हैं। देखिए, नेक अमाल का वसीला और खालिस अल्लाह की बारगाह में नेक अमाल को पेश किया, अपनी जिंदगी की नेकी को अल्लाह के बारगाह में पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसीबत के वक्त दुआ को कबूल कर लिया। नेक अमाल का वसीला अल्लाह के बारगाह में कबूल हुआ, और अल्लाह ने मुसीबत से निजात अता फरमा दिया। अब मैं आपके सामने एक बात रख दूं, कितने तरीके से वसीले को अल्लाह के बारगाह में पेश किया जा सकता है। वसीले की दो किस्में हैं, एक जायज वसीला और एक नाजायज वसीला। और वसीला का माना हमने बताया अल्लाह के बारगाह में कुर्ब तलाश करना, अल्लाह के बारगाह में करीब होने के लिए जरिया तलाश करना, इसका माना होता है। जायज वसीला कौन सा है? जायज वसीला आप समझ लें, नाजायज खुद समझ में आ जाएगा। जायज वसीला जो है अल्लाह के बारगाह में, वो समझ लें आप। नाजायज वसीला आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नाजायज वसीला कौन सा है और
जायज वसीला कौन सा है? तो आइए समझ लेते हैं कि जायज वसीला कौन सा है। पहला, अल्लाह के नामों के जरिया अल्लाह को पुकारना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों के जरिया से अल्लाह को पुकारना। कैसे? ऐ रब्बुल आलमीन तू करीम है, तू मुझ पर करम फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन तू गफूर है, माफ करने वाला है। ऐ रब्बुल आलमीन तू हमें माफ फरमा। बताने का मकसद ये है, अल्लाह के नामों के जरिया से अल्लाह को पुकारना और अल्लाह के नामों का वसीला लगाना, ये पहला वसीला है। दूसरा वसीला, अपने ईमान और इस्लाम को अल्लाह के बारगाह में वसीला बनाना। कैसे बनाओगे? ऐ रब्बुल आलमीन मैं पहले बहुत गुमराह था, ऐ अल्लाह मैं गुमराही के रास्ते पे था, शिर्क व बिदअत के रास्ते पे था। ऐ अल्लाह तूने हमें सही ईमान अता कर दिया, सही इस्लाम अता कर दिया। ऐ रब्बुल आलमीन मैं अपने ईमान का, अपने इस्लाम का वसीला तेरे बारगाह में पेश करता हूँ। ऐ अल्लाह हमें फला मुसीबत से निजात अता फरमा दे, या फला चीज हमें अता फरमा दे। तो दूसरा क्या हो गया? अपने ईमान और इस्लाम का वसीला पेश करना। और तीसरा वसीला जो जायज, अपने नेक आमाल का वसीला, जो हमने अभी सही बुखारी की रिवायत के अंदर तीनों आदमियों के वाक़े को बयान किया। और चौथा वसीला क्या है? नेक आदमी से जाकर दुआ करवाना। अब नेक आदमी के अंदर आलिम हाफिज भी आ गए, या वो शख्स भी आ गया जो मुत्तकी और परहेजगार है, जो सहीहुल अकीदा है, वो जिंदा है, उसकी जिंदगी में जब वो बाहयात है तो उससे जाकर अपने लिए दुआ करवा सकते हैं। उसके मरने के बाद नहीं, उसकी जिंदगी में उससे जाकर दुआ करवा सकते हैं, जो नेक और मुत्तकी और परहेजगार हो और सहीहुल अकीदा हो। ये चौथा जायज वसीला था जो हमने बताया। और पांचवा, अपनी हालात और मजबूरी को सामने रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करना और अपने हालात और मजबूरी को अल्लाह के सामने बयान करके अल्लाह से दुआ करना। ये पांचवा वसीले का तरीका, जो हमने 5 जायज वसीले हैं जो अल्लाह से करीब कर देती हैं। ये 5 चीजें हैं जो किताब और सुन्नत से इसका सबूत है। और जिस चीज को का हुक्म आया है कि 5 चीजों को अल्लाह की बारगाह में आप पेश करके अल्लाह से तकर्रुब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के करीब हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी वसीले के तरीके लोगों ने राइज कर रखे हैं या लोगों ने तरीका जारी कर रखा है, वो इस्लाम में उसका कोई वजूद नहीं है, वो बिल्कुल नाजायज है। जो इन 5 वसीलों के अलावा जो वसीला तलाश करते हैं, जो तरीका अख्तियार करते हैं, बिल्कुल नाजायज और बिल्कुल बेबुनियाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार इलाह हम तमाम मुसलमानों को सही तरीके से इस्लाम को समझने वाला और सही तरीके से किताबुल्लाह सुन्नत रसूल पर कमा हक़्क़हू हम सबको अमल करने वाला बना दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके को हम सबको जिंदा करने वाला बना दे और हम सबको जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख इस्लाम पर खात्मा हो, ईमान बिल खैर पर। आमीन या रब्बल आलमीन।